ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ डेवलपमेंट। यस मैम। तो इसमें जो है आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि when comparing cost benefit analysis with the environmental impact assessment in the cost benefit analysis, because everything is evaluated in terms of monetary benefit. There are certain projects where the benefit, especially because cost can always be indicated, right? तो अगर कोई ह्यूमन वैल्यू एनहांसमेंट वाला, ह्यूमन लाइफ एनहांसमेंट वाला भी मान लो प्रोजेक्ट है, या रोड सेफ्टी वाला प्रोजेक्ट है, या एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, सभी में कॉस्ट तो लिख ही सकते हैं मैं, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो मार्केट वैल्यू से मिल जाएगी। तो कॉस्ट तो जो है वो रुपए में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेनिफिट जो है उसको हमेशा रुपए में लिखने में प्रॉब्लम होती है। सो द मेन ड्रॉबैक ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज that in all the projects it is not possible to write down the benefit in terms of currency, right? So although the benefit, there are other problems also, because the benefit may not be attained in near future, but the benefit may be attained after a number of years, and after a number of years what will be the cost of rupee, and the amount of benefit in rupees may change over the years, depending on the fluctuation in the value of rupee. But still the problem is that in projects which are related to road safety, environmental, or human life, so the projects which have intangible elements, in those cases the benefit cannot be penned down in terms of rupees. So that is the main drawback of CBA. And then there are other drawbacks also, because there may be fluctuation in the parameters, which is referred as sensitivity analysis. So the certain parameters of the project over the years, they may have ups and downs. So that is another problem, है ना? कुछ पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो घट बढ़ सकती है, तो वो एक और प्रॉब्लम है। इनटेंजिबल एलिमेंट्स मतलब जो ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन लाइफ, एनवायरनमेंट, रोड सेफ्टी, इस टाइप की चीजों से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के इवेल्युएशन में चूंकि बेनिफिट सीबीए में मैंडेटरी होता है कि रुपए में ही बेनिफिट देना है और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रुपए में बेनिफिट देने में, मान लो सेम प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया, मैंने उसमें कुछ वैल्यू लिखी, आपने सबमिट किया, आपने थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू लिखी। The problem is that every human being places different value on intangible elements, and therefore the benefit in these type of projects will vary from person to person, or will vary from human to human. So this is what you have to write, and then you give an example. ये इस तरीके का डिस्कशन लिखने के बाद में फिर आप एग्जाम्पल दीजिएगा। जो दो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल तो उसमें एकदम लिखे हुए हैं। एक जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है एनवायरमेंट हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट का, कि जिसमें पार्शियल फंडिंग हमको वहां के लोकल लोगों से चाहिए। उस केस में कुछ लोग जो हैं कंट्रीब्यूशन देना पसंद करेंगे, कुछ लोग कंट्रीब्यूशन देना नहीं पसंद करेंगे।
तो कुछ लोगों के लिए उस प्रोजेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, कुछ के लिए उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस टाइप की चीजें, एक ये हो गया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड हमें कुछ करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज इन हिल एरिया, हिल स्टेशंस, the roads have mirrors at the corners to see the oncoming traffic. There are mirrors because there are sharp turns. The roads are made out of hills, so there are sharp turns, and on the turn there is a mirror. And if the mirrors are not placed, you want to carry out a project where throughout the road you want to put mirrors at these points, at these blind spots. Then the cost of mirrors you can write down in rupees, because there will be a market value of the mirror which you can see, and then write down the cost of the cost incurred in putting whatever number of mirrors, that can be written down. But the cost of human life saved, or the cost of road safety given in terms of life saved per day or lives saved per month, those things cannot be written in terms of rupees. You cannot write down the monetary value of the benefit. So that is another example. But if you are forced to do CBA analysis on your project proposal, then you do not have a choice. ठीक है, तो मतलब अगर हमको CBA करके ही प्रपोजल सबमिट करना है, दो ही तो चॉइस होती हैं, या तो हम EIA का प्रोफॉर्मा भरेंगे या हम CBA का प्रोफॉर्मा भरेंगे। हमको प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना है, अगर हमें कहा गया है कि नहीं EIA नहीं किया जाएगा, CBA किया जाएगा, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे CBA का मतलब है कि कॉस्ट लिखो रुपए में प्रोजेक्ट की और बेनिफिट लिखो रुपए में, तब मेरे पास चॉइस कहाँ है? चॉइस नहीं है, मुझे बेनिफिट रुपए में लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में, इंटेंजिबल एलिमेंट्स वाले प्रोजेक्ट में, सपोज मैंने सबमिट किया, मैंने उसमें कुछ बेनिफिट लिखा रुपए में, एक और थर्ड पर्सन ने सबमिट किया सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी होता है। हम लोग बात जो ये कर रहे हैं पूरा EIA वाला, ये चीज ही EIA या CBA ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए होता है। सपोज हम कमिटी मेंबर हैं, हमारे सामने 5 प्रोजेक्ट रखे गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि मैडम कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो, और 2 का पैसा मान लो गवर्नमेंट देगी, 5 प्रोजेक्ट प्रपोजल सामने रखे, 5 में से 2 मुझे चूज करने, तो हम अपने विवेकानुसार उसमें से चूज करेंगे कि हमारे हिसाब से इन दोनों को फंड कर दीजिए, बाकी जो है वो रहने दीजिए। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि कमिटी में एक अकेला जना तो होता नहीं है। सपोज 5 लोगों की कमिटी है, हमने कुछ वैल्यू के अकॉर्डिंग इवेल्युएट किया, दूसरे ने कुछ और वैल्यू के अकॉर्डिंग इवेल्युएट किया, तीसरे ने कुछ और के अकॉर्डिंग इवेल्युएट किया। अब EIA में किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, ये अभी जब आपको EIA कराएंगे तो उसी में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसका प्रोफॉर्मा जो होता है वो बड़ा एग्जॉस्टिव होता है। जबकि CBA में तो जैसे बताया, सिंपली कॉस्ट लिखेंगे रुपए में और बेनिफिट लिखेंगे और करंट वैल्यू में लिखेंगे, क्योंकि जैसे बेनिफिट आज तो नहीं मिलेगा, मान लो हमें 5 साल बाद रिटर्न मिलेगा, आज तो हम खाली इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिटर्न जो है वो 5 साल बाद मिलेगा। 5 साल बाद रुपए की कीमत कुछ और होगी, चीजों की कीमत कुछ और होगी, लेकिन हमें तो वैल्यू आज लिख के सबमिट करना है, तो जो करंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग लिख के सबमिट किया जाता है CBA में। ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंटिंग लगा सकते हैं कि हम जो है वो थोड़ा सा वो डिस्काउंटिंग को देखते हुए कि 5 साल बाद हमारे अनुसार, या जो भी जैसे मार्केट चल रहा है उसके अनुसार 5 साल बाद जो है क्या कीमत हमको लगता है होएगी, कितना रिटर्न मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है रुपए में वैल्यू भर देंगे। लेकिन वो
करंट वैल्यू मानी जाएगी, जिसमें कि डिस्काउंटिंग लगाने के बाद में हम लिख सकते हैं। तो मैम ये सीबीए में मैम हाँ, करेंट वैल्यू में देंगे तो इसमें तो लॉस होने के ज्यादा चांस है ना। लॉस होने के कहाँ चांसेस है, क्योंकि ओवर द इयर्स जो है एक्चुअली बेनिफिट ज्यादातर कमी हो जाता है, बढ़ता थोड़ी ना है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट जो है और बढ़ ही जाती है। तो आज की तारीख में जो बेनिफिट लिखोगे एक्चुअली 5 साल बाद हो सकता है उतना बेनिफिट ना मिले। पर यही तो इसमें प्रॉब्लम है सीबीए में कि मतलब एकदम एक्यूरेट इवेल्युएशन नहीं होता है। उसमें दो मेन ड्रॉबैक हुए। एक तो हो गया वो एलिमेंट ऑफ बायस, जो इसमें वो भी दिया हुआ है ना सीबीए के ड्रॉबैक्स में ये भी मैंने पढ़ के बताया था। क्रिटिसिज्म ऑन सीबीए में दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा वो बायस वाला जो है पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इनटेंजिबल इस टाइप के एलिमेंट जहाँ आ जाते हैं वहां पे सबका अपना अपना नजरिया होता है, अपने अपने अनुसार लोग वैल्यू लिखते हैं। तो यूजुअली अब लॉस तो लॉस है कि गेन है वही तो बताना सीबीए में थोड़ा इस टाइप के इंटेंजिबल एलिमेंट्स वाले प्रोजेक्ट में बताना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक आदमी जो है वो अपने अनुसार वैल्यू प्लेस करता है, और उसमें जो जो आदमी इवेलुएट करता है वो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो खाली कॉस्ट और बेनिफिट देखेगा, उसके अकॉर्डिंग ओके करेगा। तो इसमें रूम बड़ा कम होता है, जबकि ईआईए में जो आगे पढ़ाएंगे उसमें जो प्रोफॉर्मा होता है वो बड़ा एग्जॉस्टिव होता है। तो उसमें जो इस टाइप के इंटेंजिबल एलिमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसमें आपके पास प्रोफॉर्मा में जो है क्वेश्चंस होते हैं और जगह होती है जहां पे आप उसके प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स और डिटेल में आप इंडिकेट कर सकते हो कि कैसे कैसे वो एनवायरनमेंट को एनहांस करेगा, या कैसे कैसे उसमें जो है रोड सेफ्टी बेटर होगी और कैसे वहां के लोगों को फायदा होगा। प्लस ईआईए में ये है कि उसमें वो सब भी रहता है, जैसे पब्लिक ओपिनियन वगैरह भी रहता है। प्लस उसमें जो है डिफरेंट कैडर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कि उसमें एक पॉलिटिशियन भी होगा, एक बिजनेस वाला भी होगा, एक एक्सपर्ट भी होगा, एक टेक्निकल भी होगा। तो उससे सबका ओपिनियन आ जाता है, तो बेसिकली और प्लस पब्लिक ओपिनियन भी आता है वहाँ के लोकल लोगों का, जो उसके मतलब जिनको इमीडिएट फायदा होगा उनका अपना ओपिनियन भी पोल के थ्रू उसमें आता है। तो इस तरीके से वो जो है उसमें इवेल्युएशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। The main difference in comparison of CBA and EIA is that EIA is actually more transparent for these type of project proposals where you have intangible elements, and they get certain amount of benefit if you are doing EIA as compared to CBA, where they cannot get any benefit. तो मतलब सीबीए में उस तरीके से अगर आप कह रहे तो हाँ, सीबीए इवेल्युएशन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए जो है लॉस में चला जाता है, क्योंकि उसमें इवेल्युएशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो EIA methodology for these type of projects is much better and more transparent. ठीक है, यही आपको इसमें लिखना है। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के फिर मैंने जो है कुछ वो बताए थे, कुछ उसके मॉडिफिकेशंस बताए थे, जैसे कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, फिर इनकॉर्पोरेटिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस इन अ CBA analysis, that you can look at the ups and downs in the main parameters of the project proposal over the number of years in which that project will be carried out. So you can look at the fluctuation, and based on that fluctuation will give you a better idea of the what the benefit is going to look like after a number of years.
So that gives slightly, that strengthens slightly the CBA analysis. ना, तो जब सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं या कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं ट्रेडिशनल सीबीए के साथ में, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाता है, लेकिन उतना स्ट्रेंथन नहीं होता जितना कि एक्चुअली EIA प्रोसेस में जितना स्ट्रेंथन होता है उतना इसमें स्ट्रेंथन नहीं होता है. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, नो मैम. ठीक है, तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आप अपना नोट्स जो है वो इस कोर्स में वैसे बहुत जरूरी है. जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताए थे, अगर नहीं लिखे थे तो अभी बोलो, फिर से हम क्वेश्चंस डिक्टेट कर दें. और क्वेश्चन आंसर टाइप से मेरा सजेशन तो यही है कि एक तो मतलब ये हो गया, जो जैसे ये ऑनलाइन में जो सुनते हो उसके अलावा फिर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हो. और उसके अलावा आप जो है एक रजिस्टर बना लो जिसमें क्वेश्चन आंसर टाइप से जो है, जो टाइम टू टाइम हम क्वेश्चन बताते हैं उनका आंसर अपने आप डिटेल में लिख लो. जहाँ पे लगे कि नहीं लिख पा रहे हो आंसर तो हमको बोलो, हम डिक्टेट करके बता देंगे. और नोट्स जरूर बना लो, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी. कोर्स बहुत ही कम है, लेकिन क्या लिखना है एग्जैक्टली वो वही इसमें जो है इस कोर्स में डिस्कस करते हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. You have to write the proper material in the answer, and the questions, yes, the questions may look very similar, but they all have a different content in the answer. So you have to be careful, especially in this portion that unit 2 which I am teaching. Unit 1 is very straightforward, and unit 3 is also actually pretty straightforward, and that is why I am taking unit 2, because you need time to make notes on unit 2. And again I am saying that especially for unit 2 you make the notes in terms of questions and answers. It is very important and it will help you a lot. So it is important. And wherever you have a problem at any point you can tell me, I will dictate. ठीक है? ओके मैम. अब जो है इसमें एक्चुअली यूनिट 2 में यूनिट 1 से रिलेटेड एक PDF मैंने अपलोड किया है, 2 और बनाए हैं, वो भी हम आज किसी टाइम शायद अपलोड कर देंगे. अब यूनिट 2 में एक चीज जो बची है लास्ट, वो है इकोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, अब इसमें अभी बेसिक डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि अभी EIA नहीं कराया है. EIA वाला चीज तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको लास्ट में एकदम फिर से बताएंगे. पर अभी के लिए एक ब्रीफ में जो है वो EIA जो होता है उसमें एनवायरनमेंट वाला फैक्टर रहता है. अब जैसे ग्रोथ है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ है, वो पुराने जमाने से ग्रोथ का हम लोग जो मीनिंग जो निकालते थे, अभी भी जो निकालते हैं ज्यादातर लोग, वो इकोनॉमी से निकालते हैं. कि उसका कहने का मतलब है, जैसे अगर हमारी इनकम ज्यादा हो रही है, हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है, हम ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं, हमारे पास जो है ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा चीजें हैं, मकान, गाड़ी, ये वो सब है, तो हम ये समझते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है, या हमारी ग्रोथ जो है वो बेटर है. ठीक है, तो उसको मतलब इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट was taken as a synonym of growth or development.
ठीक है. In olden days and to a great extent even now, although it's been a number of years since the concept of sustainable development, people often take growth in terms of enhanced economy, that if our economic status is going up, we say that yes, we are attaining growth or we are developing. But that is the difference in economic growth factor and ecological growth factor. Economic growth factor is totally economy based, or you know, this based on CBA, that is a growth of any country or any person defined in terms of economic status. That is economic growth factor. Ecological growth factor, on the other hand, is towards sustainable development ना. तो इकोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर जो है वो जब से सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, तब से धीमे धीमे अब हम लोग इकोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं. किसी कंट्री के इकोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं जिसमें खाली पैसा ही नहीं, पैसे के साथ साथ हम नेचुरल रिसोर्सेज का कितना संरक्षण कर रहे हैं, और आज की पीढ़ी में और आगे आने वाली पीढ़ियों को कौन से रिसोर्सेज उपलब्ध रहेंगे, हम किन रिसोर्सेज को नष्ट नहीं कर रहे हैं या जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टर्म्स में जब हम ग्रोथ देखते हैं किसी कंट्री की, तो वो इकोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर कहलाता है. और खाली लोगों के पास कितना पैसा है, उनको कितना पैसा मिल रहा है, उस तरीके से ग्रोथ को देखना, डेवलपमेंट को देखना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर कहलाता है. ये दोनों में डिफरेंस है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर is based on cost benefit analysis and the ecological growth factor is towards sustainable development or the holistic development of a country. तो अब जो है एक जैसे टेबल बना के दो चीजों में डिफरेंस लिखते हैं, उस तरीके से आप रजिस्टर खोल के मैं डिक्टेट कर रही हूँ, डिफरेंस लिख लो. क्योंकि ये वाला पन्ना शायद मुझे ढंग से ध्यान नहीं है, ये है स्कैन में कि नहीं है, जैसा देख के बता सकते हो. ये सीबीए वाले में उसके बाद में ये वाला पेज है? नो मैम नहीं है. हाँ तो फिर लिख लो, क्योंकि इसको लिखवाने में आई थिंक बेटर है बजाय ऐसे देने में, क्योंकि उसमें बहुत ब्रीफ में लिखा हुआ है. सबके पास खुला हुआ है रजिस्टर और पेन? नहीं तो आप 2 मिनट लेके पहले खोल लीजिए, फिर हम बोलते हैं. 2 मिनट में. हाँ ठीक, खोल लो. सबने खोल लिया? यस मैम. यस मैम. तो हेडिंग डालो, डिफरेंस इन इकोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर. Difference in ecological growth factor and economic growth factor. अब इसमें लिखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर
economic growth factor is based on economic growth factor is based on economic enhancement. Economic growth factor is based on economic enhancement of people of a country. It is not holistic development. It is not holistic development and not sustainable development. And not sustainable development. It only concentrates on income of people. It only concentrates on income of people and financial upliftment of people. And financial upliftment of people. The ecological growth factor of a country is towards holistic development. The ecological growth factor of a country is towards holistic development and more sustainable.